So linear programming basically aims at studying the programming of linear, where the functions are all linear, right? Optimization functions are all linear. The objective function and the constraints all are linear, right? The variables can be the decision variables, right? X, Y, they can be 2, 3, any number of variables, but the function would be linear, right? So if we are saying that minimize z such that z is equals to 60x plus 80y, then this function 60x plus 80y would be called objective function, and these two equations would be called constraints, and these all should be linear functions. Objective function and constraints, every function should be linear function. Then we call this optimization problem as linear programming, right? So linear programming problems can be solved easily using the graphical methods, right? So first what we are for graphical method, any for given any optimization problem, our main aim is to find the optimal solution, right? So for that we must identify the feasible region कि कहाँ पे optimal solution या कोई भी solution exist कर सकता है, right? Such that we are given this example. Let us consider the same programming के लिए minimum this minimum 60x plus 80y given these conditions are true, right? So if we are solving this equation graphically, what we do is we plot the constraints in the xy domain, right? So constraints are 3x plus 4y greater than equals to 8, 5x plus 2y greater than equals to 1. So we'll draw the lines for the equal signs. ठीक है, इक्वालिटी के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. जैसे फर्स्ट लाइन ये आई, this is the line L1, right, corresponding to 3x plus 4y is equals to 8. Similarly second line क्या थी, second constraint हमारे पास क्या था, 5x plus 2y is equals to 1. then हमने वो line draw करी xy plane में, right? now all जो हमारे पास जो constraints थे they were greater than equals to के, right? so अब ये देखना है कि feasible region कौन सा होगा. so for that अगर हम origin point जो है, सबसे easy point है origin, इसको प्लॉट करके देखते हैं दोनों इक्वेशंस में, राइट? सो अगर इस वाली इक्वेशन में ओरिजिन डालते हैं, सो 3x प्लस 4y अगर मैं इसमें ओरिजिन पॉइंट डालते हैं तो वुड बी 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, तो वैल्यू आई 0. इज दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 8? 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 ना. सो दैट मीन्स वो वाला रीजन जो 0 से अवे है वो इसमें काउंट होगा. तो 0 के साइड वाला रीजन ये वाला आता है इस इक्वेशन में. सो दिस कंस्ट्रेंट में ये वाला पॉइंट आएगा, राइट? फॉल्स है. सो इस केस में भी 0 से अवे वाला रीजन काउंट होगा. सो दोनों का इंटरसेक्शन रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन तो नहीं आएगा बिकॉज ये इस इनक्वालिटी को ट्रू नहीं कर रहा. सो इंटरसेक्शन रीजन इज ये सारा रीजन, राइट? सो हमें हर एक इक्वेशन, हर एक प्रोग्रामिंग के लिए हमें यही निकालना है, ये वाला रीजन निकालना है जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे. x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड दोनों लाइन से सेटिस्फाई करता हुआ, राइट? सो ये जो शेडेड रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन. ठीक है, फिजिबल रीजन निकालने के बाद जितने कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं, जैसे इसमें एक यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है और एक यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है. अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, जैसे ये अनबाउंडेड है, तो हम कहते हैं कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं आएगा. बट अगर ये बाउंडेड रीजन आ जाता तो कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते, और अगर मिनिमम प्रॉब्लम है तो जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारा सोल्यूशन होगा. मेथड समझ आया? यस सर. ठीक है. सो इसके रिगार्डिंग हम जैसे सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, that is maximize the function p which is 7x plus 4y given these constraints. 4x plus 3y is less than equals to 240, 2x plus y is less than equals to 100, xy greater than equals to 0, right? तो इसके लिए भी लाइन ड्रॉ करेंगे. 4x plus 3y is equals to 240 वाली एक L1 लाइन ड्रॉ करी, देन एक L2 लाइन ड्रॉ करी. देन हमें चाहिए लेस देन इक्वल्स टू, एंड देन अगेन भी 0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि दोनों लाइन पे 0 0 लाइन ही कर रहा, राइट? सो 0 0 को सब्स्टिट्यूट करके देखा. सो 4x प्लस 3y इस केस में 0 आएगा. 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 240, मतलब 0 वाला रीजन काउंट होगा, राइट? सो दैट मीन्स इस लाइन के 0 वाली साइड इज इनर साइड, सो इनर साइड पे हमने शेडिंग कर दी.
नेक्स्ट इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो 0 इसमें भी इंक्लूड होगा इस रीजन में, राइट। सो ये वाली लाइन के भी L2 लाइन में भी 0 की साइड आएगा शेडेड रीजन। सो दोनों का इंटरसेक्शन रीजन क्या होगा, ये वाला सिर्फ। एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, राइट। सो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या आएंगे, एक ये पॉइंट, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, एक ये पॉइंट और एक ओरिजिन, राइट। और ये फिजिबल रीजन है सारा शेडेड रीजन। ये फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0 0, 50,0, 0,80 जो y एक्सिस पे था एंड 30 40 जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट। सो इन पे वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू हमें क्या चाहिए, p फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है एंड p फंक्शन वाज 60, p फंक्शन वाज 7x प्लस 5y, राइट। 7x प्लस 5y की वैल्यू निकालेंगे हम इन सब पॉइंट्स पे। सो 0 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, 50 0 पे 350, 400 410 मैक्सिमाइज करना था तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 410 वैल्यू आ रही है। सो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ गया, 30 40 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, दैट वुड बी 410। सो अगर फिजिबल रीजन है, बाउंडेड रीजन है तो उसमें सॉल्यूशन निकालने का मेथड समझ आ गया ग्राफिकली। नाउ मेन पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है सिर्फ x एंड y तब तो हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं। ग्राफिकली भी कई बार निकालना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ग्राफिकली हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, राइट। एंड वो निकालना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। एंड अगर दो से ज्यादा वेरिएबल आ गए, x y z लीनियर प्रोग्रामिंग ही है लेकिन वेरिएबल्स ज्यादा है, तब हम ग्राफिकली उसको सब प्लॉट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ये मेथड फेल हो जाता है। तो उस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड होता है, दैट इज सिंप्लेक्स मेथड। अब सिंप्लेक्स मेथड के जो स्टेप्स होते हैं हम वो यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्या स्टेप्स होते हैं किसी को पढ़ना हो तो अलग से पढ़ सकता है, बहुत कम्बरसम मेथड है। एंड सिंस हमारा फोकस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, उसको फॉर्मुलेट करना है, विल नॉट बी स्टडिंग दिस मेथड। हाउएवर सिंप्लेक्स मेथड को यूज करना भी कई बार, एक इक्वेशन अगर हमें दी हुई है तो वो कम्बरसम हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है कंप्यूटर के लिए भी कई बार, राइट। n डायमेंशंस में हमारे पास n इक्वेशंस है। सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, टेबल प्लॉट होती है, हर एक स्टेप पे नई टेबल प्लॉट होगी, वैल्यूज कैलकुलेट होंगी, फिर नई टेबल प्लॉट होगी, फिर नई वैल्यूज कैलकुलेट होगी। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लेक्स होती जाएगी वो मेथड जो है इनएफिशिएंट होता जाएगा, राइट। सो उसलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं डुअल ऑफ दैट प्रॉब्लम, राइट। एंड डुअल का मतलब क्या होता है, लिटरल सेंस में डुअल का मतलब डबल होता है, राइट। सो अगर हमारे पास कोई एक लीनियर प्रोग्रामिंग दी हुई है एंड हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको उसके डुअल में चेंज करेंगे, राइट। उसका डुअल निकालेंगे एंड डुअल निकालने का फायदा क्या होगा कि डुअल निकालने से प्रॉब्लम एक तो सिंप्लीफाई हो जाएगी एंड सेकेंड जो सोल्यूशन आएंगे इक्विवेलेंट सॉल्यूशंस होंगे उनके, राइट। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी निकालनी हो वो वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो सॉल्विंग डुअल इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग द प्राइमल प्रॉब्लम। इफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू वन इज नॉन देन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू देन इज आल्सो रीडेबल, ठीक है। नाउ रीड कैसे करते हैं उनको, उनमें रिलेशन क्या होता है, नेक्स्ट इज दैट पॉइंट। नाउ गिवन हमारे पास मान लो प्राइमल प्रॉब्लम है, प्राइमल मतलब मेन प्रॉब्लम जो हमें गिवन है, ठीक है। नाउ गिवन अगर हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम है जनरल फॉर्म में, दैट इज मैक्सिमाइज दिस फंक्शन c1x1 प्लस c2x2 अप टू cn xn, मतलब इसमें n वेरिएबल्स है सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है, लीनियर कंस्ट्रेंट्स है, लेस देन इक्वल्स टू b1 b2 एंड अप टू सो ऑन bm। m कंस्ट्रेंट्स है, n वेरिएबल्स है, राइट। ग्राफिकली ये सॉल्व नहीं हो सकता, राइट। सो हो सकता है कि ये मेथड सिंप्लेक्स मेथड से यहीं से इजीली सॉल्व हो जाए, बट अगर सॉल्व ना हो ये वाली प्रॉब्लम तो इसका डुअल कैसे रिटर्न करते हैं। सो इसका डुअल होगा, अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है तो डुअल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट चेंज आ गया। नाउ सेकंड चेंज इज ये z इज वेरिएबल, इसमें x था हर जगह, डुअल प्रॉब्लम में वेरिएबल होगा y जो कि गिवन होगा। अब यहाँ पे c1x1 c2 cn xn थे एंड कंस्ट्रेंट फंक्शन में b1 m1 थे, राइट।
सो दूसरे फंक्शन में जब हम इसका डुअल रख रहे हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा दैट वुड बी दिस b1 इंटू नया वेरिएबल y1 प्लस b2 अप टू सो ऑन bm इंटू नया वेरिएबल ym। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन किससे बन जाएगा, प्राइमल के कंस्ट्रेंट से ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जो कंस्ट्रेंट के फंक्शंस हैं ये वैल्यूज जो आएंगी कोफिशिएंट्स, ये कॉस्ट फंक्शंस जो है ये कंस्ट्रेंट्स में चले जाएंगे। राइट, सो इन शॉर्ट डुअल का और प्राइमल का रिलेशनशिप क्या होता है, अगर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मैक्सिमम zx इज इक्वल्स टू समेशन cj xj j इज इक्वल्स टू 1 टू n, राइट, सच दैट कंस्ट्रेंट्स गिवन है हमें ये दिस इज लेस देन इक्वल्स टू bi। ठीक है, तो जब इसको डुअल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मिनिमाइजेशन हो जाएगा zy में विच इज इक्वल्स टू समेशन, अब cj xj की जगह bi yi हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे b क्या है, ये वाले कंस्ट्रेंट फंक्शंस, कंस्ट्रेंट्स की जो वैल्यू थी। ठीक है, yi एक नया वेरिएबल है ना। अब इसमें कंस्ट्रेंट्स में क्या चेंज आएगा, देखो यहाँ पे aij समेशन था, यहाँ पे aj i हो जाएगा, x की जगह y वेरिएबल है, लेस देन इक्वल्स टू था तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, एंड b है तो c की जगह अगर हमने b लिख दिया तो b की जगह पे c आ जाएगा। रिलेशन समझ आया, प्राइमल टू डुअल कैसे करते हैं। प्राइमल टू डुअल करने का यही इसका मेन लॉजिक क्या होता है, अगर प्राइमल प्रॉब्लम में हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, सो इसका डुअल होने का मतलब है हम उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना दोनों इक्विवेलेंट चीजें हो जाएंगी, राइट। तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम कर रहे हैं प्रॉफिट को तो मिनिमम कर रहे हैं कॉस्ट को डुअल में। लॉजिक समझ आया। एंड प्राइमल टू डुअल कैसे चेंज कर रहे हैं वो समझ आया। अब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी तो समझ आ जाएगा क्लियरली। इसके जो रूल्स हैं, मेन रूल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन है तो वो मिनिमाइजेशन का बन जाएगा। प्राइमल वेरिएबल अगर एक्सजे है तो वो कंस्ट्रेंट बन जाएगा एक्सजे में, राइट। वो नेक्स्ट अगर बी आई इसका प्राइमल कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू है, राइट, सो वो उसके डुअल वेरिएबल में चला जाएगा। अगर वेरिएबल एक्सजे अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, यहाँ पे एक्सजे के ऊपर हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई कि एक्सजे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या क्या है, राइट। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाई वेरिएबल रहेगा, वाई ग्रेटर देन 0 रहेगा अगर यहाँ पे एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर कोई एक्सजे अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन दे रखा है, मतलब साइन की इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं दे रखी, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई जे वेरिएबल होगा उस वाई जे कंस्ट्रेंट होगा, एक्स जे वाई जे कंस्ट्रेंट होगा वो इक्वालिटी का टाइप के आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर कंस्ट्रेंट में किसी में यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उस अगर मान लो सेकंड कंस्ट्रेंट में इक्वालिटी है, सेकंड कंस्ट्रेंट में इक्वालिटी है, ठीक है, तो दैट मींस इसके सेकंड वेरिएबल में अनरिस्ट्रिक्टेड साइन आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के अगर प्राइमल में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के डुअल में हो जाएंगे। एग्जाम्पल करते हैं फिर समझ आएगा ना। हमें गिवन था प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइज z विच इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 प्लस 3x3 एंड गिवन कंस्ट्रेंट्स वर 1 2 3 एंड x1 x2 x3 आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका डुअल लिखना है। डुअल लिखने के लिए व्हाट विल डू इज, पहले तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थी तो क्या हो जाएगी मिनिमाइजेशन, करेक्ट। नाउ ये x का वेरिएबल था तो मिनिमाइजेशन फंक्शन किसका होगा, y का। अब इसमें फर्स्ट जो आएगा, अब इसकी फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है जब हम डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख रहे हैं। डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने के लिए फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है 10, लेस देन इक्वल्स टू साइन के साथ 10 है, राइट। सो 10 इंटू फर्स्ट वेरिएबल y1, सेकेंड कंस्ट्रेंट की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2, तो 2y2, थर्ड की क्या थी 6, तो 6y3। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना आया, फर्स्ट कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड के करस्पॉन्डिंग सेकेंड, थर्ड के करस्पॉन्डिंग थर्ड। ठीक है, तीन कंस्ट्रेंट्स थे,
तो 3 वेरिएबल बन गए, राइट। नाउ अब हमें लिखने हैं इसकी कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू, राइट। सो वो क्या करेंगे, हम ऐसे रीड करेंगे 1 y1, यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट x1 का क्या है 1, देन 1 y1 प्लस 2 y2 प्लस 2 y3 फर्स्ट कंस्ट्रेंट बन जाएगा, ठीक है। रो वाइज की जगह कॉलम वाइज स्टडी करेंगे इसको डुअल बनाने के लिए। सो कॉलम वाइज इज 1 2 2, सो 1 2 2 y1 y2 y3। सेकंड में क्या आएगा 1 -1 -2, तो 1 -1 -2। थर्ड में 1 -1 -3, तो 1 -1 -3। कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन समझ आ गई, राइट। नाउ लेस देन इक्वल्स टू थे तो डुअल में क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ये वाली वैल्यूज कहां से आएंगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट क्या था 1, तो 1। सेकंड वाले का -1 तो -1, एंड थर्ड वाले का 3 तो 3, एंड सारे पॉजिटिव थे तो सारे पॉजिटिव। एग्जाम्पल समझ आया, कोई डाउट हो तो पूछो, या कहीं कुछ ना समझ आया कंफ्यूजन हो तो भी। डुअल में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम इसको एन डायमेंशनल में चेंज करेंगे, तो वहां पे कंफ्यूजन आ सकती है अगर ये क्लियर नहीं होगा। तो पहले इसको क्लियर करो, कोई डाउट है तो पूछो। चलो देन नेक्स्ट वी आर डूइंग एन एग्जांपल अगेन, जिसको हमें डुअल में चेंज करना है। वी आर गिवन अ प्रॉब्लम minimize z which is equals to x1 plus 2x2 subject to these conditions, right। 3 conditions हमें given है, and x1 x2 greater than equals to 0, ये लास्ट वाली कंडीशन है। फर्स्ट थिंग इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो कंस्ट्रेंट्स जो है सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू के चाहिए। फर्स्ट थिंग इज जो प्राइमल प्रॉब्लम ही हमें गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मिनिमाइजेशन के लिए हर एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप का होना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो था वो लेस देन इक्वल्स टू टाइप का था, तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू करने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो दिस वुड बी -2x1 -4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -160, राइट। तो अब सारे के सारे जो है ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू में हो गई। अब जब सेकंड कंस्ट्रेंट पे आते हैं तो वो इक्वालिटी में है, इक्वालिटी भी हमें नहीं चाहिए होती, हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए होता है, राइट। सो इक्वालिटी को भी हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज अगर हम लिख रहे हैं x1 minus x2 equals to 30, then that would imply x1 minus x2 is greater than equals to 30 and this is also less than equals to 30, right। so therefore now greater than equals to 6 वाले इक्वेशन में तो greater than equals to है ही। अब सेवेंथ में लेस देन इक्वल्स टू है इस इक्वालिटी में, तो इसको भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू करने पड़ेगा, सो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, सो दिस वुड बी -x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -30। तो अब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आ गए, एक ये फिफ्थ वाला कंस्ट्रेंट, एक सिक्स्थ वाला, राइट। सेवेंथ वाले को कन्वर्ट करके हमने एथ में लेके आए हैं विच ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 ऑलरेडी था, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 कंस्ट्रेंट्स हो गए विद x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ अब इसका डुअल का प्रॉब्लम जो है लिखेंगे, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम थी तो मैक्सिमाइजेशन में चली जाएगी, maximum zy is equals to, now first was constraint was this, तो -160 into y1, second was this plus 30 into y2, then third was -30 into y3, and then fourth is 10y3, तो plus 10y4, राइट। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब हमें कंस्ट्रेंट्स क्रिएट करने हैं, तो कंस्ट्रेंट्स के लिए क्या आएगा, रो वाइज कॉलम वाइज चलेंगे, तो दैट मीन्स 2y1 प्लस y2, राइट। अब 2 यहां पे अगर लेते, ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट फंक्शन हमारे पास ये वाला था, तो इसका फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है -2, सो वो फर्स्ट का कोफिशिएंट हो गया -2, देन सेकंड का 1 है तो 1 आ गया, थर्ड कंस्ट्रेंट के लिए -1 है तो -1, एंड y4 के लिए 1 है तो 1 आ गया, राइट। सो
फर्स्ट कंस्ट्रेंट बन गया, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट कोफिशिएंट वाज 1, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1। लेस देन इक्वल्स टू क्यों? क्योंकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। सिमिलरली सेकेंड कंस्ट्रेंट हम लिखेंगे, तो -4y1 यहां से -4y1 -y2, ठीक है, प्लस y3 एंड y4 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा? 0, क्योंकि x2 का यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट x2 का यहाँ पे 0 है इस वाली कंस्ट्रेंट में, राइट। सो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या आ गया हमारे पास? -4y1 -y2 plus y3 is less than equals to 2 and y1, y2, y3 are all greater than equals to 0. नाउ यहां पे अब एक चेंज क्या है कि y2 और y3 जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हमने जो y2 और y3 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करें, ये दोनों के दोनों एक ही इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि हमारे पास क्या था? x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 30 था, तो उसको हमने दो में चेंज किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -30 में, राइट। सो इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल आया था y2, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल आया था y3, लेकिन कंस्ट्रेंट तो हमारे पास एक ही था, तो दो वेरिएबल नहीं आने चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग, राइट। सो व्हाट वी डू इज वी लेट y इज इक्वल्स टू y2 माइनस y3, सेम इसी फॉर्म में y2 माइनस y3 हमने एक अज्यूम किया, ठीक है। देन ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा? मैक्सिमम zy इज इक्वल्स टू -60y1 एज इट इज रहेगा। नाउ 30 यहां से कॉमन आएगा, तो y2 माइनस y3 इज y, तो प्लस 30y प्लस 10y4 सब्जेक्ट टू -2y1। नाउ y2 माइनस y3 की जगह अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे y, तो -2y1 प्लस y प्लस y4 एंड -4y1 plus y is less than equals to 2, where y1 and y4 are greater than equals to 0 and y is unrestricted in sign, क्योंकि y2 यहाँ पे पॉजिटिव था, y3 यहाँ पे पॉजिटिव था, बट इनमें से कोई बड़ा छोटा है ये हमें नहीं पता है, राइट। तो जब हम पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव करेंगे तो वो नंबर कैसा भी आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 0, एंड हेंस दिस वेरिएबल y इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, राइट। तो यहाँ पे डुअल की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सेटिस्फाई हो गई, डुअल प्रॉब्लम आ गई, सच दैट ना उसमें जो है सेकंड जो इक्वालिटी थी मेन प्राइमल प्रॉब्लम में, सेकंड जो इक्वेशन थी दैट वाज इक्वालिटी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड वेरिएबल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड आना चाहिए, एंड सेकंड वेरिएबल हमारे पास डुअल में अनरिस्ट्रिक्टेड आ गया y, क्लियर है। तो सारे सेटिस्फाई हो गए, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डुअल प्रॉब्लम ऑफ दैट इक्वेशन। क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, दैट इज डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल, ठीक है। इफ आइदर डुअल और प्राइमल प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, राइट, अनबाउंडेड अगर फंक्शन वैल्यू आ जाती है, देन अदर हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। थर्ड इज इफ आइदर प्रॉब्लम हैज फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देन अदर आल्सो हैज ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड जो ऑप्टिमल वैल्यू आएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो सेम होगी, दैट इज मैक्सिमम ऑफ zx वुड बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ zy। अगर प्राइमल प्रॉब्लम ये है, सो डुअल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। एंड इस रिलेशन को हम कहते हैं फंडामेंटल प्राइमल डुअल रिलेशनशिप, दैट इज ऑप्टिमल वैल्यूज इक्वल होंगी प्राइमल एंड डुअल की, ठीक है। सो इन शॉर्ट समरी क्या हुई, अगर हमारे पास एक डुअल प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की, अगर हमारे पास एक प्राइमल प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन की, तो उसके दो वो हो सकते हैं कंडीशंस, या तो फिजिबल रीजन आएगा या इनफिजिबल सॉल्यूशन आएगा। अगर फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो डुअल प्रॉब्लम के पास फिजिबल सॉल्यूशन होगा अगर इक्वल दोनों वैल्यूज है फाइनाइट, ठीक है। इनफिजिबल सॉल्यूशन कब आएगा? जब मैक्सिमम ऑफ zy हम निकाल रहे हैं, दैट वुड टर्न टू पॉजिटिव इंफिनिटी, राइट। सो इन इसका कंक्लूजन क्या निकला कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम के पास
इनफिजिबल सॉल्यूशन है, तो डुअल प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन तो फिजिबल होगा बट वो अनबाउंडेड जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। सिमिलरली अगर प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिजिबल है, इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा अगर मिनिमम जेड वाई जो है माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और अगर प्राइमल प्रॉब्लम ही अनबाउंडेड है तो उसका डुअल प्रॉब्लम का इनफिजिबल या इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा, राइट। सो इन शॉर्ट, अगर फाइनाइट वैल्यूज हैं प्राइमल और डुअल की, तब तो फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अगर अनबाउंडेड फंक्शन वैल्यू आ रही है डुअल की, राइट, सो इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा दोनों केस में। थर्ड केसेस, अगर डुअल प्रॉब्लम जो है वो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे जा रही है तो फिजिबल या इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा केस है, राइट। हमारे इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंपॉर्टेंस इस चीज का है कि फिजिबल सॉल्यूशन होगा एंड प्राइमल डुअल रिलेशनशिप होल्ड करेगी, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल। नाउ जब हम कोई भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड की, जैसे हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दी हुई है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम कभी भी जब सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा सॉल्व करने के लिए लेस देन इक्वल्स टू वाला या ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला हम कोई भी इक्वालिटी यूज नहीं करते। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो सारी लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इन इक्वेशंस को पहले इक्वल इक्वेशंस बनाते हैं। अब इक्वालिटी ऐसे तो नहीं आ सकती कि हम ऐसे ही लिखते हैं कि इक्वालिटी आ गई। इक्वालिटी कैसे आएगी, एक स्लैक वेरिएबल ऐड करके। स्लैक वेरिएबल मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करके। सो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल कैसे ऐड करते हैं ना, अगर हमारे पास गिवन है ये वाली इनइक्वालिटी 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब ना इसका मतलब क्या है कि LHS जो है RHS से कम है, राइट। सो दैट मीन्स LHS में अगर हम कुछ ऐड कर देंगे सच दैट कि वो RHS के इक्वल हो जाए, ऐसा हो सकता है। एंड वो ऐड क्या किया है हमने, वो ऐड किया है x4, तो इस x4 को बोलेंगे हम स्लैक वेरिएबल है, ठीक है। तो सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो थी, सेकंड कंस्ट्रेंट ये था, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 28, तो इक्वल टू 28 करने के लिए एडिशन किया हमने एक x5 का, एंड थर्ड इक्वेशन में भी x6 का ऐड किया उसको इक्वल टू करने के लिए। अब इनके ऊपर कंडीशन क्या है कि ये पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गए तो इनइक्वालिटी और ज्यादा इनइक्वाल और तरफ LHS और छोटा हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर दिस x1 x2 x3 x4 x5 ये ऑल आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने एडिशन क्या किया है, x4 x5 एंड x6, इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है। तो जब भी हमें कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करती होती है, सॉल्व करने से पहले हम उसको स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके इक्वालिटी की फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। सो स्लैक वेरिएबल्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आगे ये मैंने बताया कि स्लैक वेरिएबल्स होते क्या है। अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें कि सॉल्व करने का क्या मेथड है, इसलिए मैंने आगे एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ। जस्ट ये कि स्लैक वेरिएबल्स होते क्या है, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं हम एक फंक्शन में। तो जब भी हम कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम निकालेंगे तो हमने ये एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे हैं x4 x5 x6, तो पहले तो हमें इन्हीं की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इनकी वैल्यू निकालते हैं, x4 इज इक्वल्स टू सेम जो ऊपर इक्वेशंस आई हैं उनमें इनको LHS पे रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स को RHS पे रख देते हैं, ठीक है। एंड कॉस्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास एज इट इज है, कॉस्ट इसमें जीरो कॉस्ट ऐड हुई है, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई कॉस्ट नहीं लेके चल रहे हम, स्लैक वेरिएबल्स की कॉस्ट हम जीरो लेके चलते हैं, राइट। सो इसको इस फॉर्म में लिखने का मेन रीजन क्या होता है कि इस फॉर्म के बाद सिंप्लेक्स मेथड में टेबल बननी शुरू होती है, राइट। तो हर एक प्रॉब्लम को इस फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसके बाद उसकी टेबल बनती है, और इस फॉर्म में तब कब ला सकते हैं, जब हम स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर सके, ठीक है। सो ये कंसेप्ट था लीनियर प्रोग्रामिंग का, इसमें कहीं डाउट हो तो पूछो। ये कंसेप्ट यूज होंगे डुअलिटी के, स्लैक वेरिएबल्स के आगे आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स करने में, सब डाटा एनालिसिस के प्लेन में, उसमें आगे जो हम जितने भी सेक्शंस करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ एक बेसिक स्टेप है
उन सेक्शंस के लिए कि ऑप्टिमाइजेशन को हम उसमें कैसे यूज करेंगे, ठीक है। एंड सिंस ऑप्टिमाइजेशन को यूज कर रहे हैं तो उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। दैट इज वाई द सेक्शन इज बीइंग डन। कोई डाउट हो तो इस सेक्शन में आप